It is such a bizarre story that it actually sounds like it is the stuff of fiction. लेकिन ये कोई किताब या मूवी की कहानी नहीं है. This has actually happened in real life. Today we'll be talking to a couple that underwent IVF treatment, produced two babies, and then found that the babies looked nothing like the parents, underwent DNA testing to find the shocking truth. And the shocking truth was that the embryos that had been implanted in the mother clearly belonged not to her and her husband, but to somebody else. Not just were the babies this couple produced not their own children biologically, they were not even related to each other. They were two separate donor embryos, or perhaps there was some sort of switch or mix up in the clinic. We do not have the full answers. The couple, Rahul and Meenu Rathore, then petitioned the court. There is now a police investigation, an FIR. The judge is talking about possible child trafficking. The mind simply boggles. But what would you do if you were in the position of these parents, this couple that has two infants whom they're raising as their children, but whom they know are not biologically theirs? And this is very different from the choice to adopt. That would be a completely different scenario. In a moment from now, we'll be talking to medical experts as well as the couple at the center of this storm, a story first reported by the Indian Express. I'm Barkha Dutt. You're with the Mojo Story. We bring you today the story of Rahul and Meenu Rathore, a couple who were parents to two children, but then in the later years of their life decided that they wanted more children. Because they were of a certain age, they were advised to undergo IVF treatment. Meenu was then planted with two embryos. She was a happy mother, Rahul was a happy father when their babies were delivered. And then they started noticing that the babies looked nothing like the parents. Their suspicions rose. They went in for DNA testing. The hospital concerned did not want to do the DNA testing at the hospital. They then went for independent DNA testing and found that the DNA test showed that the babies were neither related to each other nor by blood to the parents. Now the question that they're asking is, whose children are we raising? And the more important question, or the as important question, where are our biological children? What a situation for parents to be in, but also our heart goes out to these babies because they should not feel unwanted. They may have biological parents out there. Imagine the questions and the trauma that these little babies might grow up with. Let me introduce our guest today as we look at this extraordinary tale. Rahul और मीनू राठौर हमारे साथ हैं. नमस्कार and thank you. आप पे जो बीती मैं सोच ही सकती हूँ कि आप क्या कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं. एंड वी आर ऑल्सो जॉइंड बाय डॉक्टर दिव्या कुमार एंड वी थैंक हर फॉर हर टाइम. राहुल और मीनू, आप ही से शुरू करूँगी. ये आपकी कहानी है. आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि पहले हॉस्पिटल ने कहने की कोशिश की कि आप लोगों ने कंसेंट दे दिया था कि जो एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो रहे हैं वो अनोनिमस है, वो डोनर एम्ब्रियोज हैं. लेकिन आपने इस असर्शन को कंटेस्ट किया. आपने कहा कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं. आपने कहा कि जब आप एनेस्थीसिया की इन्फ्लुएंस में थे तो आपको पता नहीं कि आपसे कोई कंसेंट फॉर्म साइन करवाया या नहीं. शुरू से शुरू करते हैं. राहुल और मीनू, आप में से कोई भी शुरू करें. आपके दो बच्चे थे, फिर आपने कहा कि हम और बच्चे चाहते हैं. आपको IVF का एडवाइस दिया गया. आप कहाँ गए, क्या हुआ? शुरू से शुरू करते हैं. राहुल, मीनू, कोई भी मैम, शुरू करे. हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर रितु गर्ग के कहने पे हम लोग गए थे SCI IVF हॉस्पिटल में, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में. उन्होंने हमें आगे रेफर किया था क्योंकि हमारा जो सेकंड बेबी है वो डॉक्टर रितु गर्ग के अंडर ही उन्होंने ही डिलीवरी करवाई थी मैम. और आप लगा के चलिए मैम, जब हमारा ट्रीटमेंट सारा नॉर्मली हुआ है, हमारे ही गैमेट्स के साथ हुआ है. हमें बताया गया था कि हमारी 5 एम्ब्रियो बनी है, 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर हुई हैं, जिसमें से 2 एम्ब्रियो अभी भी हॉस्पिटल के पास ही है मैम. मैम, ये सारा किस्सा कहाँ से शुरू हुआ मैम? जब मैं हॉस्पिटल, जब पुलिस कंप्लेन हुई है, वो जो फर्स्ट डोनर वर्ड हमने यूज मतलब सुना, जो ठीक है जी, जो हॉस्पिटल ने भी पहली बार यूज किया, वो पुलिस कंप्लेन होने के बाद यूज किया मैम.
उससे पहले मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने मुझे पैसों का ऑफर किया, उन्होंने मुझे सैरोगेसी ऑफर की। और सैरोगेसी में क्लियरली मैम, मैंने रिकॉर्डिंग सबमिट की है, सैरोगेसी में उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज 3-4 महीने ठीक हो जाइए। पहले उन्होंने पैसे ऑफर किए, हम नहीं माने, ठीक है जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सर मैम को 3 महीने ठीक हो लेने दीजिए, उनके एग्स हम दोबारा से कलेक्ट कर लेंगे, आपके एम्ब्रियोस दोबारा से, सॉरी आपके सीमेन दोबारा से ले लेंगे, और उसके बाद मल्टीपल लड़कियों में हम लोग वो एम्ब्रियोस ट्रांसफर कर देंगे। मैम ये ऑन रिकॉर्ड है मैम, ये चीज वो इतने मतलब पावरफुल लोग हैं मैम, वो ओपनली ये चीज की है। और मैम ये सारे एविडेंसेस मैं ऑलरेडी उन्हें दे चुका हूँ। जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो मैम, वो डॉक्यूमेंट हमने नहीं दिया मैम। ये लोग, हमने एफआईआर, पहले तो 3 महीने हमारी एफआईआर ही नहीं हुई मैम। पुलिस मतलब आप लगा के चलिए सुना ही नहीं मैम, मेरे पे अच्छा प्रेशर जा रहा था। अच्छा, एक मिनट राहुल, बिफोर वी कम टू पुलिस ने क्या किया, हॉस्पिटल ने क्या किया, पहले जो लोग आपकी सिचुएशन से फेमिलियर नहीं है उनको समझाते हैं कि हुआ क्या, राइट? आप लोगों ने डिसीजन दिया दैट ऑल्दो आपके 2 बच्चे थे, आप और बच्चे चाहते थे, एंड बिकॉज आई गेस यू वर इन योर 30s, आपको ये एडवाइस सलाह दी गई कि आप आईवीएफ ट्राई करें, राइट? फिर यस आपके मैम। फिर आपके मीनू कैरीड द बेबी, सरोगेट मदर नहीं यूज हुई, उन्होंने खुद ये नहीं मैम। एम्ब्रियोज इम्प्लांट हुए, आप मीनू प्रोड्यूस द बेबीज। बेबीज जब प्रोड्यूस हुए तब आपने पाया कि उनकी शक्ल आपसे नहीं मिलती थी, राइट? शक कैसे शुरू हुआ, वहां शुरू करते हैं, क्यों? छोटे बेबी की शक्ल नहीं मिल रही थी मैम। पर बड़े बेबी की मिल रही थी। हाँ, बड़ा बेबी नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस कि बड़े बेबी की फैमिली में मतलब ऐसे कोई डाउट नहीं हुआ था बड़े बेबी पे। फिर आपने डीएनए टेस्टिंग कराई, फिर हाँ जी आपने मैम। क्या डिस्कवर किया? मैम 14 जनवरी को हमारी रिपोर्ट्स आई थी। पहली एक रिपोर्ट मैंने 2 डीएनए लैब से टेस्ट करवाया था। एक की रिपोर्ट 10th को आ गई थी मैम, जिसमें पैटर्निटी टेस्ट फेल था। और दूसरे की रिपोर्ट मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों का टेस्ट करवाया था हमने, उसकी 14th को आ गई, 14 जैन को, जिसमें दोनों बेबी का मैटरनल और पैटर्नल टेस्ट दोनों ही फेल थे मैम। तो आप कह रहे हैं कि हालांकि आपको एक बच्चा लगता था कि फैमिली रिजेम्बलेंस है, जब आपने डीएनए टेस्टिंग की तो आपने पाया कि नीदर चाइल्ड, दोनों बच्चों में से एक भी आपके डीएनए का मैच नहीं था, ना आपके ना मीनू का। यस? जी मैम। और आपने ये भी पाया कि दोनों बच्चे का एक दूसरे से भी कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अभी इसका टेस्ट, क्योंकि सिपशिप टेस्ट होना है, सिपशिप टेस्ट ऑलरेडी एम्स में हमारा हो चुका है, पुलिस ने कंडक्ट करवाया था। ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। बट जो डिटेल्स हमें मिली, क्योंकि जहां तक मैंने स्टडी किया है, इधर दे आर हाफ सिबलिंग मैम। बट मैं अभी इसको श्योर शॉट नहीं कह सकता मैम, क्योंकि सिपशिप टेस्ट का रिजल्ट अभी अवेटेड है मैम। बट जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है मैम, ये हाफ सिबलिंग है मैम। लेकिन मैं अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आती पक्का कुछ नहीं कह सकता मैम इस पे। समझ गई। ना मीनू एज अ मदर, एंड दिव्या आई कम टू यू राइट आफ्टर दैट, मीनू एज अ मदर, देखो, खून के सारे रिश्ते खून के नहीं होते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो एडवोकेट कर सकते हैं कि अडॉप्शन भी हो सकती है। बच्चे की कोई गलती नहीं है, जो बच्चे हैं, आई एम श्योर यू लव द, आई एम श्योर ये जो 2 प्यारे से आपके बच्चे हैं जो बायोलॉजिकली आपके नहीं हैं, आप फिर भी उनसे बहुत प्यार करते होंगे। लेकिन एक शॉक भी हुआ होगा टू डिस्कवर कि ये मेरे मेरे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं। तो उस भावना की, उस इमोशन की, मीनू अगर आप कुछ बात करें कि आप पे एज अ मदर आपकी क्या सेंटिमेंट रही? मैम एज अ मदर मुझे लगता है कि हर मदर ही मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि मुझे जब मेरा सर्जरी हुआ, आफ्टर सर्जरी मैं एक जो आफ्टर प्रोसीजर रहता है मैं उसी में थी। मुझे तो पता ही नहीं था डीएनए का। जब फैमिली ने डिसाइड किया, डीएनए हुआ, जब मुझे जिस दिन मुझे ये पता लगा कि डीएनए हो रहा है, मैम उस दिन, क्योंकि वो वर्ड ही अपने आप में कितना ज़्यादा मतलब ट्रॉमेटाइज़ था कि वो वर्ड सुनने के बाद ही मुझे उसके बाद बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं कब आईसीयू पहुंची, कितने दिन मैं आईसीयू में रही, आईसीयू से कब मुझे कैसे डिस्चार्ज हुआ। वो टाइम मैम, लास्ट जो 3 मंथ्स थे वो हमारी लाइफ का हेल था मैम, और वो हेल अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है मैम। इन बच्चों से बहुत प्यार है। ऑब्वियसली मैम, बच्चों से किसे प्यार नहीं है, ये गिफ्ट है भगवान का हमारे लिए। हर पेरेंट्स के लिए बच्चे भगवान का गिफ्ट है। इनके पास मैम वो हर रिश्ता है जो एक बच्चे के पास होना चाहिए, मदर का, फादर का, दादा दादी का, भाई बहन का,
चाचा का, मौसी का, बुआ का, हर रिश्ता है इन बच्चों के पास। बच्चों के प्यार में कोई कमी नहीं है, और ना ही मैम हमने कभी भी ये चीज़ बोली है कि हम बच्चे अडॉप्शन में देना चाहते हैं, या बच्चों का कोई कसूर है, या बच्चों से प्रॉब्लम है। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बात सिर्फ ये है मैम, जो इनजस्टिस हुआ है जो हमारे साथ और जो इन बच्चों के साथ हुआ है, कि इन बच्चों का क्या कसूर है मैम कि इनके पेरेंट्स इनसे दूर कर दिए गए। हमारा क्या कसूर है मैम, हमारे बच्चे हमसे दूर कर दिए गए। हम तो सिर्फ मैम बस उस इनजस्टिस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की मांग के लिए पुलिस के पास गए थे, एक इन्वेस्टिगेशन मांग रहे थे, और वो इन्वेस्टिगेशन मैम आज तक नहीं हो पा रही है, कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बावजूद भी। आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही। अगर आपके घर में बाय द वे अगर पंखा ऑन है तो थोड़ा प्लीज़ उसको बंद कर दीजिएगा, थोड़ा सा शोर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, राहुल अभी मत उठना। मैं मीनू से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप ये इसलिए नहीं आप अपनी आवाज़ उठा रहे क्योंकि आप अपने बच्चों को कहीं देना चाहते हैं, आप बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन आप सच जानना चाहते जी हैं, मैम, ये नहीं कि बच्चों से कोई कम प्यार है। बिल्कुल मैम। बोलिए। बच्चों से तो मैम ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो भी पेरेंट्स बनते हैं, ऐसा कोई भी पेरेंट्स है जिसे बच्चों से प्यार ना हो। मैम फर्स्ट डे जब वो बच्चे ओटी में मेरे पास आए, मुझे दिखाए, मैंने उनके कानों में वही मंत्र बोला जो हम 9 महीने से बोल रहे थे। ये बच्चे हमारी जान है मैम, और ये बच्चे उन पेरेंट्स की अमानत है हमारे पास, जब तक इनके जेनेटिक पेरेंट्स नहीं मिल जाते। और परमात्मा ना करे कि इनके जेनेटिक पेरेंट्स बाय चांस नहीं मिलते हैं, तो मैम हम हैं उनके पेरेंट्स। मैं मीनू राठौड़ उन बच्चों की माँ हूँ, और ये राहुल राठौड़ उन बच्चों के फादर हैं। बट मैम इस दुनिया में अगर आप बच्चे को सबसे अच्छा कुछ कोई गिफ्ट या कुछ भी दे सकते हैं तो वो उसके पेरेंट्स हैं मैम। हमारे बच्चे, जब हम इन बच्चों को प्यार करते हैं ना मैम, तो बस एक ही प्रेयर होती है कि काश कोई हमारे बच्चों को भी उतना ही प्यार दे रहा हो, वो भी किसी सेफ हैंड्स में हो, उनकी भी ऐसे ही केयर और इतनी ही ममता उनको मिल रही हो जितना इन बच्चों को दी जा रही है मैम। राहुल बोलिए। मैम आज सुबह से जो हमारी हालत है ना मैम, आज मॉर्निंग में उठते ही एक न्यूज़ आ गई कि दिल्ली में एक रैकेट पकड़ा गया है जो बच्चों को सेल करता है मैम। उसमें क्लियरली रेट्स तक लिखे हुए थे कि लड़कियों का रेट 2 लाख से 4 लाख रुपए है और लड़कों का रेट 6 लाख से 8 लाख रुपए। मैम तब से लेके अभी तक मैम, मतलब कहीं बैठ भी रहे हैं तो मैम लेग्स में शिवरिंग हो रही है मैम। मैं किस तरीके से फैमिली को संभाल संभाल रहा हूँ मैम, ये सवाल ही अब मतलब मैं कह रहा हूँ ये सवाल है ही नहीं कि इन बच्चों के साथ क्या है। ये बच्चे मैम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। हमने कभी अडॉप्शन की बात, तो ये जब हम मीडिया में आए तब लोगों ने अडॉप्शन का बोलना शुरू कर दिया। मैम मेरा ब्रदर इन लॉ है मैम, उनकी 14 ईयर्स की डॉटर एक्सपायर हो गई थी 2 साल पहले। मैम वो हाथ जोड़ के चले गए, तब तो हम मीडिया में भी नहीं आए थे मैम। वो हाथ जोड़ के चले गए, रो के चले गए कि राहुल मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बट मैम बच्चों को अडॉप्शन के लिए देना तो कभी ऑप्शन है ही नहीं मैम, कभी भी, और ना कभी होगा मैम। उनको उतना ही प्यार उतनी केयर हम देते रहेंगे ऑलवेज, और कभी फर्क भी नहीं होगा मैम। लेकिन मैम मतलब हॉस्पिटल को किसने राइट दिया था कि हमारे बच्चे चेंज करने के लिए मैम? किसी ने राइट नहीं दिया उन लोगों को। तो अब ये एक सिचुएशन है डॉक्टर दिव्या जहाँ पे राहुल और मीनू लव दीज चिल्ड्रन, ये इन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर इनको मालूम है कि ये इनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं। द डीएनए टेस्ट शो दैट। हो सकता है बच्चे हाफ सिबलिंग्स हो, मोर डिटेल्स आर अवेटेड ऑन दैट। And I think Minu's tears must speak to everybody because she has the love of a parent for the children, as does Rahul. लेकिन वो ये भी सोच रही है कि मेरे बायोलॉजिकल बच्चे हो सकते हैं कहीं हो, और इन बच्चों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहीं और हों। Now, how has this happened and what should happen now, Dr. Divya? Like before like jumping to conclusion, because since I am practicing ART, that is assisted reproductive techniques, for past like more than 12-13 years, so if you go by the rule book, it's really very difficult, rather next to impossible, that in a lab mixing of embryo is happening, because that is one thing I always patients ki, because we all know IVF doesn't give 100% result, but
आई ऑलवेज से कि जो भी होगा वो आपका 100% आपका अपना जेनेटिक बेबी ही, बिकॉज भी हम एम्ब्रियो, जब भी हम एग या डोनर स्पर्म या कभी कभी डोनर एम्ब्रियो की बात करते हैं, अब तो रूल्स चेंज हो गए बिकॉज आफ्टर एआरटी रेगुलेशंस 2021 थिंग्स हैव चेंज. दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. आई वोंट से स्ट्रिक्ट, दे आर स्ट्रिंजेंट, दे आर नाइस, दे आर गुड, दे आर पेशेंट. एंड अगर आप डीपर में जाओगे तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है कि हमारा जीन पूल कैसा हो. हम एम्ब्रियो मिक्सिंग इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वील एंड अप हैविंग हाफ brothers, half sisters, and they will end up marrying each other. तो ये चीजें इतनी strictly follow होती हैं because I tell you, abiding by the rules, sticking to the rules is much easier than breaking a rule. So because I am doing this, there are n number of forms we have to fill it. There are n numbers of consultation, counseling sessions which goes with every couple. And if we have to take a gamete, that means like either egg or sperm from outside, we have to counsel the patient, we have to explain them, they have to understand the thing, they have to accept it, and they have to give informed consent in their own language, and then only we go ahead with all these things. So it is really, for me, for a person like me, for a doctor like me, it's very surprising, and that something like this is happening and we are letting it happen. I don't know whether it has happened or not, but if it has happened, it is very, very unfortunate. What That can is what happen I now? can say. Before I come to Rahul, what can happen now? You heard the parents. वो ये नहीं कह रहे हमसे ये बच्चे ले जाइए. वो ये नहीं नहीं, कह रहे ये कि क्योंकि ये हमारा खून नहीं है हमें नहीं I चाहिए. know. They're not saying that. But what But can happen now? हमें एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी, हमें कंसेंट जरूर देखने पड़ेंगे पीछे जाके. वी हैव टू सी द होल, रिव्यू द होल ART फाइल, बिकॉज एवरी कंसेंट, बिलीव मी बरखा, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट. There is no anything gray or anything there. It's if they have given a consent for egg donor, it has to be there. For a sperm donor, it has to be there. So that has to be there in the file. So we have to investigate it first and let the authority spell it out, like what has happened exactly. So you can see that as you're asking the questions, Rahul and Meenu Yeah, are holding up their writ petition, है ना? I Rahul, know. Rahul, I know. Rahul, कंसेंट के सवाल पे मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ आपसे. डॉक्टर दिव्या इज सेइंग इफ इट हैज हैपेंड, इट इज टेरेबल. हाउ इज इट हैपेंड? इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक चीज होती है, मेडिसिन में फ्रेज होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट. डॉक्टर दिव्या, यू ट्राई टू से समथिंग, Can प्लीज. जी in their language also, that is what I'm emphasizing. See, that consent has to be in their own language. Suppose a person comes from Iraq, for example, then we have to explain, take a consent in language. So there's no room for anything gray. It has to be absolutely black and white. Like ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कंसेंट आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. तो कंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बरखा, और हमें वो कंसेंट देखना ही समझ पड़ेगा गए, कि समझ गए. जब ये स्टार्ट हुआ था तो क्या था. तो राहुल, अब मैं आपके पास आती हूँ. आप क्या दिखा मैम रहे हैं हमें? ये ART लॉ की बुक है मैम, बेयर एक्ट है मैम, ठीक है जी. इसमें पेज नंबर 64 और सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, इसमें मैम क्लियरली मेंशन है, द इंटेंडिंग कपल वुमन शेल साइन एन एफिडेविट टू बी स्worn बिफोर metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class or an executive magistrate or a notary public giving guarantee as per section so and so. मैम ये जो फाइल, ये मेरी फाइल नहीं है मैम. ये जब हमारी FIR हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसके रिवीजन पेटिशन हॉस्पिटल ने डाली थी. मैं थोड़ा सा इसको पास ले आऊंगा मैम. इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आपका कंसेंट फॉर्म है वो एटलीस्ट नोटराइज होना चाहिए मैम. ये फॉर्म लगाया है मैम, कहीं से भी नोटराइज नहीं है. ये जो स्टैंप है ये कोर्ट की स्टैंप है मैम, कहीं से भी नोटराइज नहीं है मैम. इसमें एक चीज मैम आप एग्री करेंगे कि जो कंसेंट होता है वो कंसल्टेशन के टाइम होना चाहिए मैम. मैम इन्होंने कंसल्टेशन का जो डेट और कंसल्टेशन नहीं, कंसेंट का जो डेट और टाइम दिया है 14 में, जब ये परचेज हुआ है मैम, ये एफिडेविट जो परचेज हुआ है मैम 14 में 2025 3:59, मतलब ऑलमोस्ट 4 बजे मैम. मैम ये उनका डिस्चार्ज कार्ड है मैम हमारा, ठीक है जी.
इस पे क्लियरली मेंशन है कि 14 मई 2025 को मेरी वाइफ 1 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है मैम, और डेट ऑफ ऑपरेशन 14 मई 2025 3.28 3:28 पे मैम हमारा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मतलब कि उससे पहले इन्होंने डोनर भी अरेंज कर रखा था बिना कंसेंट लिए, और क्या मैम मिड में वो लेंगे मैम? जब ट्रीटमेंट चल चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, मेरी वाइफ के एम्ब्रियो इम्प्लांट की जा रही है, उसको बीच में रोक के लिया जाएगा मैम कंसेंट? मैम हमारे किसी भी डिस्चार्ज कार्ड पे डोनर वर्ड, डिस्चार्ज कार्ड तो छोड़ दिए मैम, एन नंबर ऑफ कंसल्टेशन है, किसी एक पे भी डोनर वर्ड यूज नहीं किया हुआ मैम, किसी एक सिंगल पेज पे मैम। आपको ये जो बात की जा रही है बार बार, बिफोर दिव्या रिस्पॉन्ड्स, मीनू, बार बार ये जो हॉस्पिटल की तरफ से एक डिफेंस आया कि मीनू और राहुल ने कंसेंट साइन किया है, ये आपकी क्या याददाश्त है इसके बारे में? नहीं मैम, कोई भी कंसेंट फॉर्म हमसे साइन नहीं करवाया गया है, कोई भी ऐसा पेपर मैंने बिल्कुल भी साइन नहीं किया है, और ना ही इस मतलब डोनर वर्ड से रिलेटेड हमसे कभी कोई बात नहीं की गई है, कोई कंसल्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें जो भी उन्होंने जो भी मेरी प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो सारी मेरी ही हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं, जो भी हमें मेडिसिन से जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है वो हम दोनों का ही है। इवन जो हमारा डिस्चार्ज कार्ड है, जिस दिन मेरे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किए गए हैं, उस पर भी जो मेंशन है वो हस्बैंड वाइफ मेंशन है मैम, इसमें कहीं पे भी किसी डोनर का कोई भी वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। और मुझे मैम कभी भी किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेशन, कोई साइन, कोई भी एफिडेविट, कुछ भी साइन नहीं करवाया गया है। मैम इसमें दो चीजें और है मैम, जो रिकॉर्डिंग्स मैंने पुलिस को दी है वो डॉक्टर की खुद की है और उनके मैनेजर की है मैम। डॉक्टर ने, जो डॉक्टर मनप्रीत है, उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि राहुल वो एम्ब्रियो जो 5 बनी थी वो आप ही की एम्ब्रियो बनी थी। डॉक्टर उनकी क्लियर वर्डिंग, डॉक्टर शिवानी नोज, डॉक्टर विशाल नोज, गौरव नोज, ज्योति नोज, एवरीवन नोज कि वो एम्ब्रियोज आप ही की थी और आप ही की ट्रांसफर की गई हैं। और ये जो पुलिस स्टेशन में केस चला गया है, इस वजह से वो अपना मतलब ये चीज बोलनी पड़ रही है मैम। क्लियर है मैम, रिकॉर्डिंग में क्लियर मैं उनको ऑलरेडी दे चुका हूं मैम। यहाँ पर ये मैटर जो चल रहा है मैम कि हमने डोनर लिया या नहीं लिया, दिव्या मैम शायद आप इस चीज को अच्छे से बता पाएंगे कि कंसेंट जो होता है वो ट्रीटमेंट से पहले लेना होता है मैम। इसके अलावा मैम ये चीज मैं अभी खुल के नहीं बोल पाऊंगा मैम, मैं 1 मिनट कंप्लीट करना चाहूंगा मैम, सॉरी। एक चीज मैम पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस लड़की को ये हमारा डोनर शो कर रहे हैं मैम, जिस लड़की को ये हमारा डोनर शो कर रहे हैं, उसका हमारा डोनर होना के लिए इनके पास, डॉक्टर विशाल और डॉक्टर शिवानी सचदेव के पास मैम टाइम मशीन होना जरूरी है मैम, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि वो हमारी डोनर है मैम। एक मिनट, आपको किसी स्टेज पे हॉस्पिटल ने या क्लिनिक ने ये बोला कि आपके अपने एम्ब्रियोज हैव नॉट वर्कड, एम्ब्रियोज आर नॉट? नेवर No, no, नेवर ma'am, नेवर, ये डोनर वर्ड पुलिस कंप्लेन के बाद यूज हुआ है मैम। तो ये आप जो क्या डोनर, समझे? एक मिनट, जब मीनू में इम्प्लांट हुए एम्ब्रियोज, आप यही समझे कि ये आपके अपने नेचुरल एम्ब्रियोज हैं, नॉट डोनर एम्ब्रियोज? यस Yes? मैम, ये हमारे नेचुरल एम्ब्रियोज हैं, और ये ही उस दिन हमें बताया गया था, और ये ही हमें प्रॉपर स्पेसिफिकली क्लियर किया गया था कि आपके 3 एम्ब्रियो हैं और आप ही के एम्ब्रियो आपको ट्रांसफर किए मैम जाएंगे। दिस इज द रीजन हम लोग तब से लेके अभी तक यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के कन्फेशन है एक तरफ, एक मैनेजर उनका कह रहा है कि जिस लड़की को आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिए गए हैं उसने कंसीव किया ही नहीं, ये उनके मैनेजर की वर्डिंग है जो कि रिकॉर्डेड है। एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि जी आप ही के एम्ब्रियो आपको ट्रांसफर किए, ये उनके डॉक्टर की रिकॉर्डिंग है मैम। तो मैम अभी हमें ये पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर रितु के अंडर हमारे बच्चे चेंज हुए हैं या इन्होंने चेंज किया। ये तो मैम जब इन्होंने रिवीजन पिटीशन डाली, हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। मैम दिव्या मैम आपसे एक चीज पूछूंगा, अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, आपके ऊपर ऐसा कोई केस आता है, तो मैम सबसे पहले हर पेशेंट की एक फाइल होती है मैम, वो आप जाके सबमिट कर देंगे कि चेक कर लीजिए मेरे मैम 6 महीने हो गए, 3 कोर्ट 4 कोर्ट से ऑर्डर हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के, आज तक डोनर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना पुलिस को दिए हैं ना एआरटी डिपार्टमेंट को दिए हैं मैम। Dr. Divya, I'll add a question. We have a question in our audience stream saying, if they have 2 daughters previously,
आर दे इवन एलिजिबल फॉर डोनर ट्रीटमेंट? ये भी एक सवाल उठ रहा है अंडर द लॉ. राहुल, आई एम कंफर्मिंग दैट योर See, previous Yes, ma'am. children were both daughters. They were both Yes, ma'am. daughters. Okay, so I Yes, just ma'am. wanted to see, add that detail. Huh. yeah, it is actually, there's no rule which restricts you from becoming a parent again and again. Okay. Yet there's no such rule that if you have 4 children, but we grossly discourage such couple. We always, I'll write a sentence. This is what I usually do, and most of my colleagues I have seen doing that. That we will write that you all, since you already have 2 children, there's no need of further childbearing because you already have two. And it like, IVF is something which needs a lot of money. It has a lot of emotional impact on the patients, especially on the female. So we Yeah. discourage that way, but there's no rule which prevents you from taking an attempt of IVF. So for surrogacy, it is totally different. For surrogacy, if you have one child, you can't go for surrogacy. So that is the rule put by government, Okay. and we follow that religiously. But for IVF, there's no such rule. Like, we have to counsel them again and again, but if they insist, we have to say that you can't do a sex selection आपकी because आपकी आपकी कोई काउंसलिंग हुई इस तरह की, राहुल? आपको बोला गया कि आप क्यों करना चाहते हैं? आपके दो बच्चे ऑलरेडी हैं, मीनू, राहुल. already hai. Mostly we नहीं say मैम, that, never. and most of the, in 90% cases, we make them, believe that they don't need no more children required because they नो already मैम, have two. इसमें We tell इसमें them the इसमें financial इसमें इसमें जो implication and everything. अच्छा, राहुल कुछ बोल रहे हैं. राहुल बोलिए. Yeah, हाँ, बताएं इसमें बताएं. मैम, सी बच्चे कितने करने हैं ये हर कपल की पर्सनल चॉइस होती है मैम. ठीक है, मेरा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हम लोग जॉइंट फैमिली में है, 12 भाई बहन है हम लोग. ठीक है जी. और मेरी ऑलमोस्ट सभी सिस्टर या वो उनको देखेंगे 3-3 बच्चे हैं मैम सभी के. ठीक है ना जी. तो ये इनफैक्ट ये हमारी आज से चॉइस नहीं थी मैम. ये जब से हमारी शादी हुई है तब से ही आप लगा के चलिए, हमें ये था कि हमारे बच्चे, हमें बड़ी फैमिली ही चाहिए. और आप लगा के चलिए कि हमारे आईवीएफ का हमने क्यों ऑप्ट किया था मैम, बिकॉज 2 बच्चों में 10 साल का गैप था ऑलरेडी मैम. हम लोग लेट 30s में मैम, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 40 है मैम. मैं 40 हो चुका हूँ, मेरी वाइफ 39 ईयर्स की हैं. दैट वाज द रीज़न कि हमने आईवीएफ के लिए जो डिस्कस हुआ था मैम से, उन्होंने हमें सजेस्ट किया. और ये कभी भी डिस्कस नहीं हुआ कि आपके 2 बच्चे हैं तो आप आईवीएफ मत कीजिए. दूसरी चीज़ मैम, एक चीज़ जो हमें बाद में पता चला मैम, आप भी दिव्या मैम इस चीज़ को शायद एग्री करेंगे, जब आईवीएफ के लिए जाते हैं, जैसे बरखा मैम ने बोला कि 15-20 इंजेक्शंस लगते हैं मैम. सिर्फ 15-20 इंजेक्शन वो सिर्फ कंसीव करने से पहले लगते हैं. हमें भी इतना ही पता था कि चलो यार 10-15 इंजेक्शन तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैम उसके बाद का प्रोसीजर मैम, मैं आपको बता नहीं सकता. इट्स First three वेरी months may वेरी have. पेनफुल मैम. No, अगर it's not मुझे very. पता होता, बिलीव मी मैम, अगर मुझे एक बार भी पता होता कि मेरी वाइफ को इतने सारे इंजेक्शन से गुजरना पड़ेगा, मैं कभी आईवीएफ के लिए ऑप्ट नहीं करता. The first 3 मैम months बिकॉज पे जब do आप give some जाते extra हैं, support राइट दिया मैम, जाता है. हाँ. जब आप जाते हैं तो आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि जब तक आपके एग कलेक्ट किए जाएंगे तब तक का एक प्रोसीजर रहता है, वो 10-11 डेज का इंजेक्शंस का. उसके बाद लेकिन जब आप कंसीव कर लेते हैं, इट क्योंकि इज़ देर वेरी इज नो वेरी ऑप्शन डिफिकल्ट. आप पीछे हाँ, जा सके. अब उसमें वेरी कंसीव करने के बाद तो आप पीछे जा नहीं सकते मैम. राइट, वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर है मैम. एवरी डे आफ्टर कंसीव आपको एक दिन 2 इंजेक्शन लगते हैं, एक दिन 3 लगते हैं. मुझे याद है मैम, मुझे 4 इंजेक्शन लगे हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक थाई एरिया होता है जहाँ पे आपका मसल थोड़ा स्ट्रांग रहता है, वहीं पे वो इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं. जो उसके बाद का प्रोसीजर होता है मैम, वो नहीं बताया गया था. मैं अगर मैं आपसे हाँ पूछना जी, चाहती हूँ, these are hormone, so let's be very clear, what is in these injections? They're hormones, right? They're hormones. They're They're trying all to, the, yeah, yeah. Divya will explain, but मीनू आपसे पूछना प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस है. आपका मूड स्विंग भी होता है, दर्द भी होती यस है. मैम. Women are known to have some have very bad reactions. All of this counseling has to be done before you start the process. आपके साथ कोई भी काउंसलिंग किसी ने भी की, मीनू? नो मैम, नो. बहुत सारे इंजेक्शन समटाइम The दिव्या post मैम, of आपकी आवाज counselor. नहीं आ रही है. एक मिनट दिव्या, लेट मीनू स्पीक, देन आई विल कम टू यू. मीनू आप Okay, बोले. okay. हाँ.
जी मैम, जी। मैम मेरा ऐसा कोई भी काउंसलिंग नहीं किया गया था। जो डॉक्टर शिवानी से बात हुई थी वो बहुत ज़्यादा श्योर थे इस बात के लिए कि मतलब आप बहुत ईज़ी कंसीव कर लेंगे, आपकी तो एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है और कोई एज़ सच फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है आपको। और जो एग लेने के बाद का प्रोसीजर है उसके बाद सिर्फ़ ये था कि आपकी एक लैप्रोस्कोपी रहेगी, उसके बाद हम आपको एग ट्रांसफ़र कर देंगे और मतलब उसके बाद जो इंजेक्शंस रहेंगे या फिर जो मेडिसिन्स रहेंगी उसके बारे में मैम कोई भी कंसल्टेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। बिकॉज़ Okay. मैंने मैम अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो किलोज़ के हिसाब से तो मेरे को लगता है मैंने मेडिसिन्स खा ली हैं। Let's come to Divya now. Obviously, Rahul and Meenu believe that they have a very strong case. उनसे informed consent नहीं लिया गया. Donor word was not mentioned till a police complaint was filed. कोई तरह की pre-counseling नहीं हुई. Divya, अब क्या हो सकता है? What can happen now? Is there a way scientifically with DNA mapping to actually find out who the biological parents? Now we have found one donor. That donor may not think of herself as a parent. It is like I am just keep thinking, what are the questions these children are going to grow up with? Because the donor may not even think of herself as a, I don't know who the male donor is, but there is clearly one female donor being identified. She may not even think of herself as a No. parent. She may just have donated her eggs. Yeah, that is how egg donors are or sperm donors are. They're meant to donate their eggs or sperms and then forget it. So this is called third party reproduction, and this is how it works. So we can't expect anything out of a donor. A donor has to donate her eggs and then forget it. So that is why there's a name which is attached, that is anonymous. The donor shouldn't see the recipient. The recipient ideally shouldn't see the donor. This is what we make sure in those, absolutely, where we go step by step as per law. So that is how we proceed. So they don't have to see each other. So we can't put the blame or anything on donor, but definitely So being a let me doctor. ask you this. So let me Yeah, ask you yeah. this. Suppose the court upholds, suppose Rahul and Meenu win their case, and the court upholds that ये उनके biological बच्चे नहीं हैं, right? What happens now? We are in a gray zone of the law. We are in an absolute gray area. राहुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं before Divya यस answers? मैम, यस मैम, यस मैम। बोलिए. हाँ. यहाँ पर एक चीज जो जा रही है कि उन्होंने जो डोनर बोला है ये उन्हीं के बच्चे, ऐसा नहीं है मैम। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, उनका जो दावा है वो बिल्कुल फेक है। मैं, दिव्या मैम इस बात से एग्री करेंगे। एज पर ART लॉ, अगर आप किसी कोई डोनर लेते हैं तो कपल को उसकी इंश्योरेंस करवानी होती है मैम। उन्होंने कोर्ट में, मैम आपकी वॉइस चली गई है मैम, Agency. सॉरी। डोनर एजेंसी जो होती है वो उनका इंश्योरेंस कराती है, एंड वी पे हाँ, फॉर दैट, मतलब द कि कपल पेज कपल फॉर को दैट. कपल को करवानी होती है, कपल को ही करवानी होती है मैम। मैम इन्होंने एक इंश्योरेंस सबमिट की है, वही हमारे रिवीजन पिटीशन में इन्होंने इंश्योरेंस सबमिट की है, विच शोज डोनर का नाम बताया है, पॉलिसी नंबर बताया है, सब कुछ बताया है, और उस पर जो डेट है, डेट ऑफ इंश्योरेंस है, दैट इज 20 अप्रैल 2025। ठीक है जी। और मैम जब ओरिजिनल इंश्योरेंस हमने सबमिट करवाई है, जो डोनर की ओरिजिनल पॉलिसी हुई है, दैट इज 9 दिसंबर 2025। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हमारा ट्रीटमेंट हुआ है 14 मई 2025 को, हमारे एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिए गए हैं, और ये सो कॉल्ड डोनर जो है मैम, सो कॉल्ड डोनर का जो इंश्योरेंस हुआ है वो 9 मई 2025 को हुआ है मैम। इट मीन्स वो डोनर हमारा है ही नहीं। जब उसका DNA टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मैम। दे आर This जस्ट is a, बाइंग टाइम टू फॉर्स द डॉक्यूमेंट्स। So I want to ask two scenarios to Divya and then come for last comments to Meenu and Rahul. Scenario one, it turns out to be anonymous donors. The DNA test दिखाता है कि anonymous donors थे, लेकिन consent राहुल और मीनू कहते हैं हमारा नहीं था. ठीक है? अब क्या होगा? Question one. Scenario two, DNA tests also show that there is no matching of the DNA with the donor. That means that there is an actual mystery, and the court has observed, Divya, that we cannot rule out child trafficking. We cannot, there are larger implications here. If embryos can be either due to carelessness or scam be swapped in a hospital, it has all kind. आप इसके implications समझिए, क्या हो सकते हैं इसके implications, right? तो scenario one, scenario two में what happens now according to you, and then I'll come to Rahul and Meenu for their last comments. Divya, Dr. Divya.
I can't, like, there's no answer. I can't give an answer to you straight away to your question, because even I am in a fix. This is a scenario which where the court has to decide, the higher authorities, they have to sit and decide what to do with cases like this, because this is something which is very unusual and very unfortunate for the couple also. And I will like that the authorities, they investigate the whole thing, and they should go in depth from where it started, where the loophole is. Because see, I practice as a, law abiding citizen or doctor or ART consultant. Whatever you say, I think fiddling with the law is much much more difficult. We have to sign like 10, more than 10 consents, documents, for egg donor, for sperm donor, for surrogacy, even for a donor. The consent of donor's husband has to be there, affidavit has to be there. There's so many things which are required. That is what I am puzzled how it happened. The government should seriously It investigate. is a mind-boggling Yeah, case, and it could yeah, lead to more definitely. changes. It could more lead to more changes in assisted reproduction laws. मैं Yeah. लास्ट कमेंट राहुल और मीनू पे आना चाहती हूँ. पहले मीनू, आपने अपने टेयर्स के थ्रू कहा, रोते हुए कहा कि बच्चों से कौन प्यार नहीं करेगा, राइट? हम ये नहीं कह रहे कि हम इन बच्चों को किसी को देना चाहते हैं, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं. एज अ मदर, आप आखिर में जो सब लोग इस सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैम एज अ मदर तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मिसअंडरस्टूड मत कीजिए, हमारे पेन को समझिए. हम यहाँ आप लोगों की हेल्प के लिए क्यों आए हैं, प्लीज़ उसे समझिए. एक हॉस्पिटल ने गलत किया है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ. प्लीज़ इसको किसी भी अदरवाइज ना लिया जाए. सिर्फ आप ये समझिए कि हॉस्पिटल ने हमारे साथ गलत किया है मैम. हॉस्पिटल ने हमारे बच्चे बदले हैं मैम. हॉस्पिटल को क्या राइट है कि वो हमारे बच्चे बदलें, इन बच्चों के पेरेंट्स को बदल दें मैम. पर मीनू, अब आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि जो आपके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं लेकिन आपके बच्चे हैं, आप उनको भी पेरेंट करें, और अगर आपके बच्चे आपके एम्ब्रियोज ट्रेस होते हैं, और वो भी हो सकता है कहीं, children have been produced, आप वो भी बच्चे, मतलब what do you want as a mother, what do you want right now? मैम एटलीस्ट हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं कहाँ. मैम वो जो डर है ना, सारा दिन दिमाग में ऐसे चलता है कि वो बच्चे कहाँ हैं, क्या उन्हें वो प्यार मिल रहा है, कहाँ पर हैं, किस कंडीशन में है, कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तो नहीं. मैम ये वर्ड आते ही आप लगाएं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उस वर्ड को सोचें भी, कि बच्चों के बारे में जैसे ही वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वर्ड भी आता है तो हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ये सोच के कि बच्चों के बारे में ऐसा सोचना. मैम मैम इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा. जी. अभी अमेरिका में सेम चीज़ हुई है, एम्ब्रियो में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी उन्होंने हॉस्पिटल को बोला, अपनी डिपार्टमेंट को बोला, मैम सेम डे के जितने भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए उनका डेटा चेक किया गया और वो केस लेस देन 4 मंथ में सॉर्ट आउट हो गया. मैम हमारी दो ही कंडीशन है मैम, या तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम गलती हुई है हॉस्पिटल से, या बच्चों की डिलीवरी के टाइम गलती हुई है मैम, बच्चों की डिलीवरी के टाइम चेंज कर दिया गया है. मैम बहुत सिंपल है, 14 मई को जितनी भी लड़कियों के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए हैं उनका डाटा हॉस्पिटल वो डिपॉजिट कर दे मैम. और यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल ऑलरेडी दे चुका है, जहाँ तक पुलिस ने हमें बताया है. अगर वहाँ पर कोई ट्विंस हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल में तो उनसे हमारा डीएनए मैच कर लिया जाए. और 14 मई को जितनी भी लड़कियाँ हैं जिन्होंने मतलब आप लगा के चलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं उनसे हमारा डीएनए मैच कर लिया जाए. राहुल, मैं आपसे भी पूछूंगी, आप और मीनू इन बच्चों को अपने ही बच्चे समझकर पालेंगे, पोसेंगे, राइट? जी मैम मैम. मेरे लिए मैं फिर कहता हूँ मैम, इसमें कभी भी मतलब कभी भी आपको एक सेकंड के लिए भी फर्क नहीं दिखेगा मैम. ये बच्चे मेरे लिए माता रानी का रूप है, ठीक है जी. मेरे लिए ये आप लगा के चलिए एक एडिशनल जिम्मेदारी है मैम. अगर ये बच्चे मेरे पास रहते हैं मैम, तो मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि मैं इनकी और केयर करूँ. क्योंकि But at the पूरे same समाज की time, पूरी जब तक हम लोग जिएंगे पूरे समाज की नज़रें हम पे रहेगी कि ये अपने बच्चों और इनमें भेद तो नहीं कर रहे मैम.
इस चीज के साथ हमें पूरी लाइफ जीनी पड़ेगी। बट मैं अभी भी चाहता हूँ मैम, भगवान से प्रे करता हूँ कि इन बच्चों को इनके, क्योंकि मैम एक चीज क्लियर है, जहां पर इनके पेरेंट्स मिलेंगे वहीं पर हमारे बच्चे मिलेंगे, और जहां पर हमारे बच्चे मिलेंगे वहीं पर इनके पेरेंट्स मिलेंगे। ये फैसला हम उन पे छोड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपके जो जेनेटिकली, मान लीजिए फॉर अ मोमेंट कि हाँ जी। सच ये निकलता है कि जेनेटिकली एम्ब्रियोज किसी और औरत में इम्प्लांट हुए, गलती हुई, केयरलेस गलती हुई, और वो बच्चे किसी और के साथ है, यू वुड वांट दोज चिल्ड्रन एंड दीज चिल्ड्रन बोथ? मैम इसमें हमारा एक ही स्टैंड है, इन बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स का क्या स्टैंड रहता है मैम। उनके पेरेंट्स उतना ही हैप्पीली, उतना ही अपने दिल से इन बच्चों के, अगर उनके प्यार, मतलब अगर लगा कि 1% भी कमी है तो मैम मैं रादर सेक्रीफाइस कर दूंगा अपने बच्चे। मैं, जैसे हम 100% तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए, 100% हम, दिन रात हमारी हालत खराब होती है मैम, ठीक है, अगर उसमें से 1% भी की भी कमी मिलती है ना मैम, मैं मेरे बच्चे सेक्रीफाइस कर दूंगा मैम। मुझे नहीं पता वो लड़के हैं लड़कियां हैं क्या है, बट सेम टाइम मैम मेरे लिए ये बच्चे, मैम जिस दिन मेरी मदर को पता चला था मैम, शी इज़ 80+, मैम उन्होंने हमें सिर्फ एक बात बोली थी, मेरे को स्पेशली, क्योंकि मीनू तो बहुत ज़्यादा, उस टाइम की अगर मैं बात भी आपको बता दूं मैम, अंदर से आत्मा हिल जाती है मैम। जिस टाइम, क्योंकि मेरा डीएनए टेस्ट पहले आ गया था मैम, ठीक है जी, पैटर्निटी फेल थी, ठीक है, हम लोग एक्चुअल में, मतलब जो भी हमें देखता है यही बोलता है कि राहुल, मतलब हमें आपके जैसा कपल बनना है, ठीक है मैम। मेरी वाइफ ने मेरा हैंड होल्ड किया, और मेरी वाइफ ने एक चीज़ बोली कि राहुल ये मैटरनिटी टेस्ट अगर पास हो जाता ना, तो मैंने बाबा जी को बोल रहा था कि बाबा जी अगला सांस मत देना, राहुल मुझे सुसाइड की जरूरत नहीं पड़ती, ये मेरा आखिरी सांस होता। मैम मैं मेरी मदर के पास आया, मेरी मदर ने मुझे एक चीज बोली कि मैम हम बेटा इससे पहले या तो कान्हा जी के साथ ऐसा हुआ था या इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। मैम वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ट ऑफ एजुकेशन देंगे इन बच्चों को, बेस्ट ऑफ लाइफस्टाइल देंगे मैम, हर चीज। लेकिन मैम हमें बस इतना भी, मैम अगर इतना भी कर दें हमारे लिए कि हमें बस इतना पता चल जाए कि हमारे बच्चे किसकी गोद में है, वो सही तो है, वो It's a ठीक तो है, उनकी heartbreaking. एजुकेशन, उनका सब कुछ, बस इतना इतना भी पता लग जाए। और मैम मैं आपको, आपके ऑन एयर बैठा हूं मैम, मैं गारंटी देता हूं अगर 99% भी निकला उन पेरेंट्स का इन बच्चों के लिए प्यार या तड़प, मैम मैं मेरे बच्चे सेक्रीफाइस कर दूंगा मैम, मैं इन बच्चों को नहीं दूंगा। हाँ लेकिन Heart उसी तड़प के साथ, जिस तड़प से हम तड़प रहे हैं, अगर वो आते हैं, वो सामने आते हैं और उतनी तड़प के साथ इनको एक्सेप्ट करते हैं, तब हम रोएंगे मैम, लेकिन उस दिन खुशी के आंसू रोएंगे मैम। बहुत दिल को दुखाने वाली बात है मीनू। आखिरी मैं वर्ड आपको दूंगी, उसके बाद आई हैव टू क्लोज। एक माँ को एक आखिरी वर्ड मिलना चाहिए, आप बोलिए। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारा दर्द समझिए, हमारी हेल्प करिए मैम, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाइए प्लीज़ मैम। नहीं ये होने दी जा रही मैम, जो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होने दी जा सेंटर रही। एआरटी डिपार्टमेंट जो है मैम, वो स्टेट जो है मैम, जो स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट है, वो हमारी जी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं मैम, नो, प्लीज़। सो वी आई थिंक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। जो रोशनी है वो सच पे फोकस होनी चाहिए। व्हाट इज द ट्रूथ हियर, द फैक्ट्स मस्ट कम आउट, बिकॉज इट इजंट ओनली अबाउट राहुल एंड मीनू एंड देयर हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। इट इज अबाउट एनी young woman who may think of freezing her eggs, thinking she can use IVF later to have a child. IVF was meant to give women more options. What was IVF? IVF was meant to say biological determinism will not decide a woman's life. कि ये नहीं है कि आपने 25 साल, 26 साल, 27 साल, 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा नहीं किया तो आप कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। That was what it was about. It was meant to give women more options, not to be taken into some murky zone जहाँ पे किसी को कंसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है ही नहीं। एंड पीपल, आई मीन, मुझे तो बार बार, आपका दर्द मैं समझती हूँ राहुल और मीनू, लेकिन मैं बार बार सोचती हूँ दीज योर चिल्ड्रन व्हेन दे ग्रो अप, उनके क्या सवाल, चिल्ड्रन मीनिंग आपके पहले चिल्ड्रन और ये चिल्ड्रन, क्योंकि ये भी अभी तो लीगली तो आप ही के हैं और आपने कहा है हाँ आप जी इनको मैम। पालेंगे और पोसेंगे, इनके मैम क्या दिल से सवाल हमारे होंगे। हैं मैम, लीगली तो बाद में आएगा मैम, पहले दिल से, आत्मा से हमारे हैं मैम ये। और मैम हम इनको एक सच्चाई के साथ बड़ा करेंगे।
और वो सच्चाई रादर निकल के मैं इनको झूठ बोल के पालूं, झूठ बोल के पालूं, मेरे चारों बच्चों को पता होगा कि क्या हुआ है, इनको ये पता होगा कि हॉस्पिटल ने गलत किया था, कि इनमें डिफरेंसेस ना है मैम। जी जी और आपने मैम, बहुत अगर ये बच्चे परमात्मा ना करे हमारे ही नसीब में है, हमारे पास ही रहते हैं, तो इन्हें ऐसी एजुकेशन देंगे मैम कि जो सिस्टम आज नहीं सुन रहा है, ये खुद उस सिस्टम में बैठेंगे मैम। इस लायक बनाएंगे इन बच्चों को कि उस सिस्टम में ये खुद बैठेंगे मैम, और इस सिस्टम को ठीक करेंगे जो आज हमारी नहीं सुन रहा। इट्स अ वेरी वेरी मूविंग, हार्ट ब्रेकिंग, बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और इसमें सच जरूर निकल के आना चाहिए। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम भी करेंगे। राहुल, मीनू, डॉक्टर दिव्या, थैंक यू। बहुत ही दिल को छूने वाली सिचुएशन है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस दीज two children, these two little infants, and lots of questions for the assisted reproductive technology that women and men have hoped give them more options to be parents. Very serious observations by the judge about potential child trafficking. Rahul and Meenu committing that no matter what the truth is, they will raise these children as their own. Dil se, lekin sach phir bhi bahar aana chahiye. We'll leave it there. We'll keep following this investigation. Thank you so much, and God bless. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.